Hello students, today we'll be doing this chapter exponents. Alright, again we'll be following the same book that we have been doing for all the chapters, that is Essential ICSE Mathematics for class 7. This book will follow. Alright, so again before diving into the sums, let me give you a few basic formulas. In this chapter you don't need much of a concept. There are few formulas that you need to keep in mind, that you need to learn in fact, and with the help of that formula you can do the entire chapter. Alright, so now there are few basic formulas and I want you all to write these formulas. Once I finish writing these formulas, I want you all to write down those formulas in your notebook as well. Alright, it will be helpful for you. Now starting with the first formula, first and basic formula that I want to tell you all is that a to the power 0 equals to 1. Now what do you mean by here? A, what is 0? And this value is equals to 1. Now what do you mean by this? A to the power 0. Here A means A can be any number. It is any number. Here A means any number, whether positive or negative does not matter, whether fraction, positive, point, anything. If anything to the power 0, you can simply substitute that value with 1. For example, suppose 5 to the power 0. Suppose you see a question 5 to the power 0, any number having power 0, you can simply consider this as 1. That's it. Minus 1000, alright, to the power 0. Simply forget minus everything, the value is 1. Anything to the power 0. 3 by 4 to the power 0, value is 1. Any number in any form, if it has power 0, or this is known as power, and also this is the top portion is known as power as well as index, and the number on which power is present, this is known as your base. Alright, the number that is given is known as base, and number on which head the number is given, it is known as power, or not index, isn't it? Power or index. I hope you got this first one. Now I'll be referring all the numbers as I've explained you. This is base and all, with that only. Okay, now suppose a number is given. All right, another number, these two numbers are same. This number has power m, this number has the same number, they are in multiplication, it has power n. What happens? You know what you do to them? You'll write the number once, and what will happen to the powers or the index? They'll get added, m plus n. This is the basic second formula. Again, let me give you with the help of example. Let me show you. Suppose a number is 6 to the power 2 multiplied by 6 to the power 3. What will happen? You'll write the number, and then the powers will, what will happen to the powers? It will get added. 2 plus 3 you will show, and then 6 to the power 5. This will be your answer, 6 to the power 5. Simple. This is your second one. Now similarly, a to the power m, again same number. Now what happens if it is in division? When it was in multiplication we added, when it same thing, a to the power n, when it is in division, what will happen? In case of multiplication the power got added. When same situation you see, and instead of multiplication it is division, the powers will get opposite of multiplication, division, so an opposite of addition, you will get subtraction. This is what you will get when you will find division sign. Okay, same thing you need to do. Now this was your number 1, number 2, number 3. Let's go to number 4 one. A number is given. Alright, it has a power m. A number is given, that means a base has a power m, and on top of this you have another power.
if the number some number is given in this form, what you need to do, what will happen, you know, when you have power पे पावर, जब आपके पास पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, वो नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर के ऊपर पावर जब मिलता है बोथ द पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, सिंपल। ए एम एन है मतलब एम इंटू एन, इसका मतलब एम इंटू एन है, सिंपल एज दैट। आई होप इसका एग्जाम्पल हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब कर लेंगे, ये समझ में आ भी रहा होगा, बस ये लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। सो वी हैव डन दिस ऑल, ओके। नाउ वन मोर इज देयर जो यूज़ में आता है लेकिन बहुत कम, लेकिन यू नीड टू लर्न दैट एज वेल। इस केस में क्या रहेगा, आपका बेस डिफरेंट रहेगा, पावर सेम रहेगा। हम लोग किए हैं ना, जब बेस सेम है पावर डिफरेंट है। अब यहाँ पर मेरा a टू द पावर m मानिए इंटू b टू द पावर m, यहाँ मेरा बेसिस अलग है लेकिन इंडेक्स या पावर सेम है, ऑपोजिट ऑफ दिस केस ना। देखिए रिलेट करिए इससे, इजंट इट। इस केस में क्या होता है, तो इस केस में गलती से ऐड मत कर दीजिएगा क्योंकि देखिए ये लोग बहुत सिमिलर लगता है देखने में, लेकिन याद रखिएगा जब बेसिस सेम रहता है तब पावर्स ऐड होता है। जब पावर्स सेम रहता है, जब आपको मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम मिले तो आपको क्या करना होगा, वो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करना होगा, उसको इकट्ठा रखना होगा, ठीक है। और ये क्योंकि ये लोग का पावर्स कॉमन है ना m, ये प्रूफ में भी हम दिखा सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये आपका अभी आपका स्कोप ऑफ सिलेबस के बियॉन्ड है ये इसका प्रूविंग, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बस ये फार्मूला याद रख लीजिए, वरना प्रूविंग भी बहुत सिंपल है। कोई भी एग्जाम्पल उठा के हम करके, कोई भी नंबर का एग्जाम्पल लेके कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये आपका ये बेसिक कुछ फार्मूलाज है जो आपको माइंड में रखना है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 फार्मूलाज है जो आपको माइंड में रखना है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाला देखिए 5 फार्मूलाज हो गया है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो अभी हमको दिखाना है, राइट, नेगेटिव पावर वाला, है ना। मानिए कोई भी नंबर हो, नंबर नेगेटिव में हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई चेंजेस नहीं करना है, लेकिन पावर जब भी नेगेटिव में हो तो मेरा एम रहता है कि नेगेटिव पावर को हमको इमीडिएटली पॉजिटिव में करना है, तो हम उसको कर भी पाएंगे पॉजिटिव में। तो उसके लिए एक सिस्टम होता है, क्या, मान लीजिए a टू द पावर माइनस m दिया हुआ है, मेरा नंबर है, मेरा बेस है a, उसका इंडेक्स है माइनस m। तो अब हमको जब मेरा नेगेटिव में पावर है तो हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे आगे, तो मेरा पहला एम है इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलना। सो क्या रूल होता है, अच्छा कोई भी नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये मान लीजिए हम एक नंबर ही के साथ हम दिखा रहे हैं आपको, -3 दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी नंबर लिखा हुआ रहता है तो उसका हम बहुत चैप्टर्स आगे में भी बताए, उसका नीचे बाय डिफ़ॉल्ट बाय 1 रहता है ना। ये करने से, बाय 1 करने से नंबर नहीं बदलता है, क्योंकि कोई भी नंबर को डिवाइड 1 से करेंगे तो वो नंबर ही रह जाता है, इज़न्ट इट। सो अब क्या हमको देखना है, नंबर 1 ही रह जाएगा। तो अब ये बाय 1 करने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन एज इट इज़ हम रख दिए। तो मेरा नेगेटिव पावर जब रहता है ना, तो अब हमको इसको पॉजिटिव करना है, तो क्या होता है मालूम है, ये जो बेस है ना, बेस वैल्यू, इसको ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल इन अ सेंस उल्टा कर देना पड़ता है। 5/1 है ना, 1/5 हो जाएगा, सिंपल। और ये जो -3 था +3 बन जाता है, ये रूल होता है, इतना सिंपल है इसका। आपको बाय 1 नहीं दिया रहेगा, लेकिन हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए ये विजुलाइज कर सकते हैं, आपको लिखना नहीं है, विजुलाइज कर सकते हैं कि बाय 1 है। 5 का उल्टा ही क्या होता है, 1/5। 5 का उल्टा 1/5, क्योंकि जब होल नंबर में दिया है तब दिक्कत होगा, तब इसका क्या उल्टा होगा, 5 का उल्टा 1/5। क्या लॉजिक से 1/5 उल्टा होता है, क्योंकि उसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो 1/5 इसका उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास मान लीजिए 3/4 दिया हुआ है, -2 है, अगेन ये नेगेटिव पावर है, हम तो इसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। इसका पॉजिटिव पावर करने का क्या करना होगा,
उल्टा। यहाँ पर तो मेरा दोनों फ्रैक्शन दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही प्रेजेंट है। यहाँ हर नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है, जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर रहता है उसका डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया और हमको क्या बोले, उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर लेना है। मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, माइनस से पॉजिटिव पावर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये अंडरस्टैंड, ये क्लियर हो गया होगा। सो अगेन a⁻−m है, यहाँ पर हम एज अ जनरल दिखाया, मतलब क्या है, ये होल नंबर दिया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब जब होल नंबर दिया रहता है उसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 1 रहता है। और इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, ये आपको दिया नहीं रहेगा, ये आपको खुद से लगा लेना होगा, बाई 1 है, ऑलराइट। तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा, या तो उल्टा 1/a हो जाएगा टू दी पावर, ये नेगेटिव माइनस हट जाएगा, सिर्फ प्लस रह जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूलाज है, ये नंबर 6 वाला फार्मूला है। ये 6 फार्मूला है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, और ज़्यादा प्रेशर नहीं, आराम से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सम्स बुक के जो कुछ सम्स है, जो जितना थोड़ा लॉजिक रहेगा एक एक का हम दिखा देंगे। उसके बाद ये चैप्टर छोटा है, आराम से ख़त्म भी हो जाएगा आपका अपने से। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द बेस एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। सो इसमें बेस और इंडेक्स खोजना है, एक बेस और दूसरा इंडेक्स। बेस क्या बोले थे, जो नंबर्स होता है, जो नंबर रहता है, नंबर क्या है -3, और इंडेक्स और एक नाम क्या है, पावर। बेसिकली इंडेक्स से रिफ़र करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में पावर होता है ना, क्या है 7। सिमिलरली इसका बेस और इसका इंडेक्स, अगेन बेस नंबर होता है, नंबर क्या है 2/3, इंडेक्स पावर होता है। ये कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है, ये एकदम खाली जो दिख रहा है वही लिखना है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है एकदम, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूला याद रखना और उतारते रहना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू। ऑलराइट, अब हम लोग को क्या, बेस और इंडेक्स पहला क्वेश्चन था लिखना, वो बेसिक बिल्डअप हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट स्टेप जो उसका वैल्यू निकालना है। -3 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या होता है, -3 टू द पावर 4 मतलब 3 4 बार आ रहा है, ये जो भी नंबर है वो मेरा 4 बार आ रहा है। सो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अब साइन क्या लगेगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ देखिए, ये तो हम यहाँ पर ये 4 नंबर है, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो चीज़ बोल रहे हैं एकदम दिमाग में रखिएगा। जब भी कोई नेगेटिव नंबर रहता है तो उसका, जब मेरा पॉजिटिव नंबर है तो उसका साइन लेके प्रॉब्लम नहीं है, उसका चाहे पावर 2 रहे चाहे 3 रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा यही 3 टू द पावर 4 रहता तो इसका आंसर खाली 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार करते 81 आ जाता, मल्टीप्लाई करके इसको 4 बार, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, वही वाला यहाँ पर 3 3 लिखते 81 आ गया। लेकिन वही जब नंबर नेगेटिव में आ जाता है तब मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाता है साइन का ना, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। तो अब हम कैसे समझेंगे कि कब माइनस लगेगा कब प्लस लगेगा। जब भी मेरा पावर इवन रहेगा साइन पॉजिटिव आ जाएगा, जब भी मेरा पावर ऑड रहेगा साइन नेगेटिव आ जाएगा। नंबर में तो बदलाव नहीं होगा, 3 4 बार मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन साइन क्या होगा वो डिपेंड करता है पावर का, पावर पे, कि पावर इवन है या ऑड है। ऑलराइट, सो इस केस में मेरा क्या है, पावर इवन है, पावर इवन है तो मेरा साइन प्लस में रहेगा, तो प्लस देने का ज़रूरत नहीं है, इजंट इट। सो ये ऐसा ही रह गया मेरा 81। इसका बेसिकली सॉल्व करने का तरीका, नेक्स्ट 5 टू द पावर 0, यहाँ ये हो गया 5 टू द पावर 0। हम क्या बोले थे, कहीं पर भी कोई भी नंबर में अगर पावर 0 दिखे तो सिंपली वो वैल्यू 1, ऊपर मेरा 1 आ गया, उसमें कुछ सोचने नहीं है। नेक्स्ट 6 टू द पावर 2, ठीक है, ये अपने से हम बना लेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। हमेशा एक स्टेप ब्रैकेट दे के करिएगा ताकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। हम हर चैप्टर में बोलते हैं कि एक स्टेप, पहला स्टेप ब्रैकेट हमेशा रखिएगा। क्वेश्चन में हम अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा दे रहे हैं आपको।
है ना, कि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, ये मिस्टेक अवॉइड करवाता है। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 क्या हो गया 36। ये सिंपल है। 6 का स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है, इसमें करना क्या है हमको, 6 इंटू 6 2 बार करना था ना, और 6 का स्क्वायर तो मालूम होना चाहिए 36 होता है, 6 2 बार। नेक्स्ट -1 टू द पावर 3। ऑलराइट, इसका क्या मतलब है, अब हमको मालूम है जो भी मेरा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, ये चीज़ हम देख के ही समझ में जाएंगे। नंबर जो भी रहे नेगेटिव में है तो हमको पावर पे ध्यान देना है कि है क्या। ओके, पावर ऑड है तो मेरा आंसर नेगेटिव में आने वाला है। इस केस में मेरा पावर इवन था तो पॉजिटिव में आया, इस केस में मेरा पावर देखिए यहाँ इवन था तो पॉजिटिव में आया, यहाँ पर मेरा ऑड में है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। मेरा आंसर जो भी आएगा नेगेटिव में ही आने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ 1/6 देखिए, यहाँ क्वेश्चन में ब्रैकेट दे दिया है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पावर 3 है ये दोनों को मिला है, 1 को भी मिला है और 6 को भी मिला है। ऑलराइट, सो 1 को पहले 1 को पावर 3, 1 को आप जितना बार भी 1 लाख 1 करोड़ टाइप्स भी करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर 1 ही रहने वाला है, इजंट इट। 1 माइनस साइन लगेगा और पावर की वजह से 1 का पावर 3 1 और 6 टू द पावर 3। अब ये चैप्टर में आपका जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं स्क्वायर्स याद करना है, टेबल्स याद करना है, क्यूब्स मिनिमम 10 तक आपको याद रखना है, स्क्वायर आपको मिनिमम 25 तक याद रखना ही है जो हम बोले थे। इनफैक्ट 30 तक कर लीजिए उसको तो बहुत अच्छा रहेगा, स्क्वायर 30 तक। क्यूब्स मिनिमम 10 तक आपको याद रहना है। 6 का क्यूब क्या होता है 216। ये हर किसी का बुक में, नो मैटर आप कौन सा बुक करें, कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाला है, सिर्फ क्वेश्चंस बदलता है, इजंट इट। तो जो भी हो आपका क्यूब ये रहेगा आपका, ठीक है 216 6 का 10 तक बाय हार्ट याद रहना चाहिए क्यूब्स का भी वैल्यू। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या दिया है, 3 पावर मेरा डैश दिया है, ये भरना है। क्या 3 का क्या पावर मेरे को वैल्यू 81 देता है। सो आपको देखना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना बार हमको 81 देता है। 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 3 9 दिया, इंटू 3 किए तो 27 दिया, और एक बार 3 किए तो 81 मिल गया जो हमको चाहिए। सो 3 कितना बार आया है 1 2 3 4, 3 टू द पावर 4। ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर 4 होगा, इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट 125 125 इक्वल्स टू डैश क्यूब। तो बोल रहा है कि 125 कौन सा नंबर का पावर 3 दिखने ही मतलब क्यूब होता है ना, 2 मतलब स्क्वायर 3 मतलब क्यूब, तो कौन सा नंबर का क्यूब है 125। अगेन हम आपको बोले 10 तक क्यूब बाय हार्ट याद रहना चाहिए, देखने से समझ में आएगा आपको। क्यूब याद रहेगा तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऑफ 5 लिख देंगे इसका आंसर। 5 का क्यूब 125 होता है, बस यही है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो मतलब इन लोग को आपको एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर, मतलब इन लोग का पावर के फॉर्म में लिखना है, किस किस नंबर का पावर्स इसमें कंसिस्ट करता है, लेकिन कौन सा नंबर्स, प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नॉर्मल हमको फैक्टर्स निकालना होगा, मतलब एलसीएम ही करना होगा लेकिन प्राइम नंबर के साथ। सो बेसिकली मतलब क्या है, हमको इन लोगों को पावर के फॉर्म में लिखना है लेकिन प्राइम नंबर्स के पावर पे। तो मेरा प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, उसके बाद 3, प्राइम नंबर्स मालूम होना चाहिए 2 3, उसके बाद 5 आ जाता है, फिर 7 है ना, आफ्टर दैट 11 13 17 19। सो सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट वाले से स्टार्ट करेंगे जो क्या होता है 2। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या इसमें 2 का फैक्टर्स आता है, क्या ये 2 से कटेगा ये नंबर। बेसिकली ये मतलब है फैक्टर्स, मतलब क्या ये नंबर 2 से कटेगा, नहीं। 2 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 है तो 2 होगा ही नहीं। नेक्स्ट 3 का क्या है, सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है, तो इस लोग का सम निकाल लेते हैं डिजिट का। 5 2 7 प्लस 0 7 ही रह गया, प्लस 2 9। हाँ मेरा 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल रहेगा। सो
3 6 ज़ा 18, 2 3 7 ज़ा 21, 1 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट अब फिर देखना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हमेशा प्राइम नंबर से, राइट। तो हमेशा लिस्ट वाला से स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट नंबर का प्रायोरिटी मिलेगा जो 3 रहेगा, उससे नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट नंबर वाला प्रायोरिटी जो 5 है, उससे भी नहीं गया तो फिर 7, उससे भी नहीं गया तो फिर 11। ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमको पावर्स में चाहिए। तो पहला 2 से नहीं होगा, 5 है इसका यूनिट डिजिट। नेक्स्ट 3 का रूल हम बताए, जोड़ना होगा। 7 5 12 6 18, हाँ 18 3 से डिविजिबल है, मतलब 675 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अगेन इसका 5 है, 2 का सवाल ही नहीं होता होगा। फिर 3 से देखते हैं, 5 2 7 2 9, यस 9 इज डिविजिबल बाई 3। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। क्या 3 2 से है? 2 से सवाल नहीं है। क्या 3 से है? 7 5 12 है, हाँ 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से होगा। 3 हाउ मच ज़ा? 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25। क्या ये 3 से डिविजिबल है? अब नहीं होगा क्योंकि 5 2 7 आता है। नेक्स्ट 3 के बाद किसका प्रायोरिटी मिलेगा? 4 से चेक करना है, नहीं 4 प्राइम नंबर है ही नहीं। 3 के बाद 5 से जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि 5 का रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 रहेगा या तो 0 रहेगा। देखिए ये 5 था, लेकिन हम 5 से स्टार्ट क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करना है, लोएस्ट प्राइम नंबर, जैसे एलसीएम करते हैं हम लोग, है ना। तो प्राइम नंबर का एलसीएम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें सबसे कम वाला से स्टार्ट करते करते प्रायोरिटी जाता है। सबसे पहले प्रायोरिटी सबसे छोटा नंबर को, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है ना, असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा प्रायोरिटी लेवल। तो अब यहाँ पर 25, नेक्स्ट 3 के बाद किसका नंबर आएगा? 3 से नहीं कट रहा है, 5, क्योंकि 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है। 5 5 ज़ा 25, और ये 5 1 ज़ा 5 कट गया। सो अब हमको प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है। 1 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 1 टू द पावर 1 नहीं लिखेंगे हम। सो 1 2 3 4, 3 कितना बार आया? 4 बार। तो पावर के फॉर्म में लिखना है ना हमको, तो 3 टू द पावर 4 इंटू 5 कितना बार आया? 1 2। ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 7 5 6 0, अगेन 2 से, हाँ यूनिट डिजिट क्या है मेरा? 0 है, तो 2 से पक्का जाएगा ये 2 से। 2 का क्या है? 2 का रूल क्या है? यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, या तो 0 रहेगा तो भी कटता है, तो 0 है तो कटेगा ही। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 0 का 0, अगेन 0 है, फिर 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 0, फिर 0 है, 2 से जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब मेरा 5 आ गया, जो कि नहीं जाएगा, है ना। तो अब हमको 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 का रूल चेक करते हैं। 9 4 13, 13 5 18, हाँ 3 से जाएगा मेरा, क्योंकि 18 3 से कटता है, तो 3 से ये 945 भी 3 से डिवाइड होगा, मतलब कटेगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 5 है। 2 का कोई अगेन 2 नहीं कटेगा, 2 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट 3 से चेक करना का। 5 3 8 1 9, 9 जाता है 3 से, तो ये नंबर जाएगा 3 से। 3 1 ज़ा 3, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये अब डिवीजन ही है। 3 1 ज़ा 3 हो गया 1, जैसे हम डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ ये आया तो हम डिवीजन भी दिखा देंगे। 3 1 ज़ा 3, ये कट गया, नेक्स्ट नंबर 1 उतरा। क्या 1 कटेगा? 1 तो जो मेरा डिविडेंड है, जो मेरा रिमाइंडर उतरा है, वो तो क्वेश्चन से छोटा है, तो हमको नेक्स्ट वाला नंबर भी उतार लेना। जब हम 2 नंबर कॉन्टीन्यूसली उतारते हैं तो एक 0 लगा देते हैं, है ना। 2 नंबर जब कॉन्टीन्यूसली उतरता है 0 लगता है। 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर डायरेक्टली 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 हड़बड़ी में मत लिख दीजिएगा, ये बहुत लोग करता है। हम जितना स्टूडेंट्स का चेक किए, मैक्सिमम लोग ये स्पीड में, हड़बड़ी में करने में ये रॉन्ग करता है। सो मेक श्योर ये ध्यान रखिएगा, 2 नंबर जब लगातार लेना पड़ा है
तो एक 0 बैठाना पड़ता है उसका। 3 5 ज़ा 15 कटा। अगेन 5 है, 2 से नहीं जाएगा, 5 1 6, 3 से अगेन ये जाएगा, 3 3 ज़ा 9, एक कैरी हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 है, 3 से जाएगा क्या, 5 3 8, 8 तो नहीं है 3 से डिविजिबल। सो नेक्स्ट किसका नंबर मिला हमको, नेक्स्ट किसका प्रायोरिटी आएगा, 5 का। 5 हाउ मच ज़ा, 7 ज़ा 35। अब फिर 7 तो ऑड नंबर वो है ही, 7 तो और किससे नहीं कटेगा, 7 1 ज़ा 7। सो मेरे पास क्या क्या आ गया है, अब देखिए अब हमको लिखना होगा। 1 2 3, 2 3 ठो है, 1 2 3, 3 भी 3 ठो है, 5 1 ठो है, इंटू 7 भी 1 ठो है। 1 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसको हम आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जो ये लास्ट आया है यहीं तक। 2 3 ठो है, 3 3 ठो है, 5 1 ठो है और 7 1 ठो है, वही लिख दीजिए, मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज पावर ऑफ अ प्राइम नंबर, एज पावर ऑफ अ प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन होगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज पावर ऑफ अ प्राइम नंबर। इन लोग का पावर में, प्राइम नंबर में तो सब है ही है ना, तो इन लोग का पावर प्राइम नंबर में रखना होगा। सॉरी, इन लोग का नंबर जो है, जो नंबर्स है इन लोग को एज अ सिंगल पावर में रखना होगा हम लोग को, इजंट इट। सो कमिंग, अब यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ क्या है मेरा, 3 × 3 × 3। ये चीज़ आपको आइडेंटिटी देख के समझ में आ जाना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। जब मेरा नंबर मल्टीप्लिकेशन में और उसका बेसिस सेम है, हम 2 ठो में दिखाए थे ना, ए और बी, ज़रूरी नहीं है ए और बी, वो जनरल फॉर्म में हम दिखाए थे, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब अगर 3 3 3 3 3 3 हज़ारों है, अगर सब मल्टीप्लिकेशन में रूल सेम रहता है, उन लोग का पावर्स को ऐड करना है, इजंट इट। सो यहाँ पर मेरा देखिए बेस सेम है, तीनों का सेम है और सब मल्टीप्लिकेशन में है। व्हेन बेसेस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, है ना। When bases are same and they are in multiplication, the powers get added. When bases are same and they are in division, the powers get subtracted. ये रूल है। तो यहाँ पर बेसिस सेम है और पावर्स तो क्या हो जाएगा, एक बार लिखना है एंड देन इन लोग का पावर्स को ऐड कर देना है। 2 4 6 6 3 9, ये आंसर हो जाएगा सिंपल इसका, 3 to the power 9। नेक्स्ट इसका, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हमको मालूम है 11 क्या होता है, 11 कब आएगा, उसका पावर 1 रहेगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 1 मतलब 11 एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 × 1 11 ही रह जाएगा। ये भी सेम ही तरह है ना, 11 11 11, बेसिस आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स द पावर्स विल बी एडेड। एक यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर 0 मत पकड़ लीजिएगा, यहाँ पर 1 होगा ही होगा, नहीं लिखने से फिर आंसर नहीं तो 6 हो जाएगा। एक्चुअल आंसर 4 + 2 6 1 7 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर मेरा बेसिस सेम है, इजंट इट, बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल गेट, एंड व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन, द पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, सिखाए हुए है। मेरा अंदर नेगेटिव नंबर है, कोई मैटर नहीं है, नेगेटिव में छोड़ देना है, कोई उसमें हमको कोई इश्यू नहीं है। पावर्स, अगर मेरा पावर नेगेटिव में आएगा तो मेरे को दिक्कत हो सकता है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे दिखाते हैं हम, जैसे हम दिखाए थे। यहाँ पर नंबर अगर मेरा बेस नेगेटिव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई फार्मूलाज नहीं है, लेकिन पावर नेगेटिव में है उसके लिए फार्मूलाज है। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी नंबर नेगेटिव देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ करना है, नहीं। बेस अगर मेरा नेगेटिव में है रहने दीजिए, पावर है तो बस वो फार्मूला हम लोग उसमें लगाएंगे। सो अब क्या है, बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, तो 8 से 2 घटेगा, 8 - 2 क्या हो जाएगा, -2 to the power 8 - 2 क्या होता है, 6। 2, अब यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर है, हम जब क्या सिखाए थे, जब पावर के ऊपर पावर मिलेगा आपको, पावर के ऊपर पावर होने से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 2 = 8, ठीक है।
सो ये आपका आंसर हो गया इसका। कितना देर होगा? ओके स्टूडेंट्स, सो ऑलरेडी ये जितना हम समझाए ये वाला रिवाइज करिएगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट में रहेगा। सो नेक्स्ट पार्ट जितना भी और भी जितना थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी अलग अलग टाइप का है वो पार्ट 2 में ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये पार्ट 1 के लिए इतना ही।